good afternoon, good evening, whenever you see and watch the video. This is again Mustafa Anwar, and this is your beautiful channel, Topper Center 93. And I think in previous class we have already discussed how we differentiate between chemical equation and chemical reaction. And today, the most important topic we have discussed, that is chemical formula. What is chemical formula? How we can write the chemical formula? This is a basic and important theme today class. And in previous class, the last slide we have discussed. So I think in last class we have discussed this one, characteristics of chemical reaction. And I think we have discussed the first characteristics of chemical reaction, evaluation of gas. It means जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है। इसका मतलब उसमें से गैस प्रोड्यूस होती है। आई थिंक अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा, अगर पिछला लेक्चर आपको याद नहीं है तो आप थंबनेल में जाइएगा और पिछले क्लास के वीडियो को देखेगा। उसमें हम लोगों ने ये बताया है कि जब इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है इट इंडिकेट विथ साइन, वो कुछ साइन के साथ इवॉल्व होती है, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ एरो, इस तरह के एरो से वो इवॉल्व होती है, या विथ साइन ऑफ जी, या तो उसमें जी लिखा होता है, तभी हमको पता चलता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। So today we discuss change in color. It means what happened when any two or more than two reactant react together and after that one substance color change into some other color. It is also characteristics of chemical reaction. And this is your example that Fe means iron react with copper sulfate CuSO4. After that it gives FeSO4 and copper solid. And if you see the copper sulfate solution color is blue. बेटा कॉपर सल्फेट का क्या कलर होता है? ब्लू कलर होता है। एंड व्हेन आयरन इज पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जब हम आयरन की कील को, आयरन के टुकड़े को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो डालने के बाद ब्लू कलर चेंज इनटू सम अदर कलर। इसका मतलब ब्लू कलर चेंज हो जाता है किसी दूसरे कलर में, और वो कलर होता है बेटा FeSO4 का डर्टी ग्रीन। ये कुछ इस कलर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब हमने देखा इन केमिकल रिएक्शन देयर इज अ चेंज इन कलर, इट मींस इट इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Then third one is change in temperature. It means what happened when any two and two more than two reactor react together, and after that the container of in which the reaction will be occur, the temperature will be arises या temperature will be decreases. It means the changes of temperature या बढ़ेगा, temperature या घटेगा। That is based on the next characteristics, that is चेंज इन टेम्परेचर कैसे बदलता है। अच्छा, इसका भी एग्जांपल हमने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप अगर देखोगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO बेटा कैल्शियम ऑक्साइड कॉमन नेम इज क्विकलाइम। And when quicklime or calcium oxide react with water, what happened after that? It produce slaked lime. CaOH whole twice, that name is slaked lime. And after this reaction it produce large amount of heat. इसका मतलब हमारे रिएक्शन से पहले हमारे कंटेनर का टेम्परेचर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन हो गई टेम्परेचर ऑफ कंटेनर विल बी इंक्रीजेस, वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर में चेंजेस हुआ। एंड इफ टेम्परेचर चेंजेस विल बी अकर, दिस इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देन द मोस्ट and the last characteristics of a chemical reaction, that is change in state. It means you all aware about that how many state of matter, generally solid, liquid and gas. There is a three type of state of matter. It means what happened when two different type of state of matter react together and after that it gives some other type of state of matter. मतलब जब दो अलग अलग टाइप ऑफ मैटर आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद कोई अलग टाइप ऑफ मैटर दे देंगे, इसका मतलब उन्होंने अपने स्टेट को चेंज कर दिया। And if you see the example of characteristics or change in state, यहाँ पे लिखा हुआ है HCl और इसके पास बेटा G लिखा हुआ है।
हमने पहले डिस्कस किया है कि जब किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जी लिखा होगा इट मींस इट इज अ फॉर्म ऑफ गैस। इसका मतलब ये गैस है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, and it react with NH3. NH3 is a formula of ammonia, and you all know that ammonia is a gas, and also in the represent as a form of G. यहाँ पे G लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी गैस है। इसके मतलब दोनों रिएक्टेंट का हमारा स्टेट क्या है बेटा, गैस है। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद जब रिएक्शन हो गई, हमने देखा इट गिव NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, एंड इफ यू सी द स्टेट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज सॉलिड, S लिखा हुआ है। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें स्टेट भी चेंज होता है। इट मींस दिस ऑल फोर द कैरेक्टरिस्टिक्स इज बिलोंग्स टू द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, यहां तक तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हमको डिस्कस करना है, इसके पीछे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि हाउ वी कैन राइट द केमिकल फॉर्मूला, हाउ वी लर्न द केमिकल फॉर्मूला। बहुत सारे कंफ्यूजन उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो बेटा सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, या आपको याद करना ही करना है। हाँ, इसके कुछ मेथड होते हैं जिसकी वजह से हम इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। कोई अगर आपसे ये कहे कि इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है, तो शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आपको याद करना है, आपको समझना है कि कैसे आप किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिखोगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके बिना आपके आगे का लेक्चर बेकार है, उसका फॉर्मूला, उसका नाम है केमिकल फॉर्मूला। इसका मतलब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिकल फॉर्मूला है। हमको केमिकल फॉर्मूला पढ़ना है कि हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूले में हम कैसे क्या करेंगे जिससे हमको किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बोल दे। जब आप देखते होंगे क्लास में, आपके क्लास टीचर बोलते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड एसीटेट, तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी जल्दी उसको उसका आंसर देते लगते हैं। इसका मतलब उन्होंने उसको कहीं समझा है, कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है। तो ये आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। बस कंडीशन है, इसको ध्यान से समझिए, समझिए कि इसके फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है। अच्छा, आइए देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला एक्चुअली में होता है क्या, क्या होता है केमिकल फॉर्मूला। इफ यू सी the definition of chemical formula, the simplest definition ever, that a chemical formula is a symbolic representation of the composition of a chemical compound or molecules। इसका मतलब केमिकल फॉर्मूला और कुछ नहीं है, किसी भी कंपाउंड को सिंबल में लिख देना ही उसका केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। केमिकल फॉर्मूला अगर आपको कभी डिफिनेशन बनानी पड़े तो केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड, बस यही है केमिकल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड को उसके सिंबल में लिख देना ही केमिकल फॉर्मूला होता है, विद देयर वैलेंसी। मतलब वैलेंसी भी उसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वैलेंसी के बिना आप उसके चार्ज को बैलेंस नहीं कर सकते, काउंटर बैलेंस नहीं कर सकते। इसका मतलब केमिकल फॉर्मूले में दो चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, नंबर फर्स्ट उसके सिंबल, नंबर सेकेंड उसके चार्ज। मतलब बिना चार्ज के आप उसकी वैलेंसी को काउंटर बैलेंस नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोग को केमिकल फॉर्मूले की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं, अगर मैंने आप लोग से बोला कि बेटा बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आप सोचने लगोगे सर ने सोडियम क्लोराइड बोल दिया, इसका मतलब इसमें दो चीज है, एक है सोडियम, एक है क्लोराइड। इसका मतलब सोडियम का सिंबल पता होगा तभी तो लिख पाएंगे ना। तो हमने जब देखा कि सोडियम का सिंबल होता है Na एंड क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, इसका मतलब द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl। मैंने इसको कैसे लिख दिया जल्दी से, आप क्यों नहीं लिख पाए जल्दी से, क्योंकि मुझे वैलेंसीज पता है, आपको उसको याद करना है। अब हम ये समझेंगे कि वैलेंसी, आयंस, चार्ज क्या होते हैं, तो ये अब हमको नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आएगा कि हमको ये समझना है कि हमारे केमिकल फॉर्मूले में लिखना कैसे है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा लिखा हुआ है आयंस एंड रेडिकल्स, मतलब बिना आयंस और रेडिकल्स के आप कोई भी केमिकल फॉर्मूले को नहीं लिख सकते। बट द क्वेश्चन इज अराइजेस इन योर माइंड, व्हाट इज आयन, व्हाट इज रेडिकल, एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन एवर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड रेडिकल। दिखते तो दोनों एक जैसे हैं, काम भी दोनों एक जैसे करते हैं, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं, दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। अगर हम इसकी डिफिनेशन पे ध्यान दें, लिखा हुआ है एटम विथ चार्ज इज कॉल्ड आयन। मतलब मैंने क्या बोल दिया ऐसा,
मैंने बोला एटम विथ चार्ज इज आयंस, बस यही आयंस की डेफिनेशन है। बुक्स में पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, आपको सिर्फ सिंपल सी लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट समझना है। अगर किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज लिख दिया है वही आयंस है। जैसे मैंने बोला व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम एटम, आपने कहा सर Na, मैंने कहा बिल्कुल सही, दिस इज द सिंबल ऑफ सोडियम एटम। लेकिन इफ यू कैन राइट द सिंबल ऑफ Na प्लस, अभी आपने Na लिखा था लेकिन अभी मैंने Na प्लस लिख दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ देम? आपने कहा सर Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन यहां Na के ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये आपका बेटा एटम है और ये आपका बेटा आयंस है। यही डिफरेंस होता है बस, एटम और आयंस में सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि एटम कैन बी रिप्रेजेंट एज अ न्यूट्रल फॉर्म एंड आयन कैन बी रिप्रेजेंट इन आयोनिक फॉर्म। उनमें आयंस होते हैं, उनमें चार्ज होते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और देखते हैं। आप लोग को पता है कि ऑक्सीजन एलिमेंट एटम ओ होता है, क्या मैंने इसके ऊपर कोई चार्ज लिखा? आप कहोगे सर नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने लिखा बेटा O2 माइनस, इट मींस वी कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू ऑक्सीजन आयन विथ नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब एटम ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द एटम ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द आयंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बेटा आयंस है, आयंस। आई होप आयंस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया कि आयंस क्या है। किसी भी एलिमेंट को उसके चार्ज में लिख देना आयंस कहलाता है। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा सर ये आपने एक जगह प्लस लिखा एक जगह माइनस लिख दिया, ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे का आंसर आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एनसीईआरटी, व्हेन एनी एलिमेंट loses their valence electron to complete outermost cell with 8 electron, it converted into positive ion। मतलब अगर कोई एलिमेंट अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, बाहर निकाल दे अपने आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। And if any element received electron, gain electron to complete their valence cell, then it converted into negative ion। इसी को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। We know that Na means sodium have 11 atomic number। The electronic configuration 2, 8, 1, and you can see that 1 is more electron in M cell। मतलब अगर सोडियम को अपने एम सेल को कंप्लीट करना है, दो रास्ते हैं, या तो वो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या तो वो अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। कौन सा इजी पड़ेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना, क्योंकि ये मेटल की टेंडेंसी होती है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन। क्लास 9 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। इसका मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन को हमेशा लूज करते हैं। इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी? 2, 8। देखो इसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तभी तो इसके ऊपर +1 आया। इसका मतलब प्लस, नंबर ऑफ प्लस इंडिकेट द नंबर ऑफ लूजेस इलेक्ट्रॉन। जितना प्लस लगेगा उतना ये समझ में आएगा कि इसने इतना इलेक्ट्रॉन लूज किया। सेम वही कंडीशन नेगेटिव आयन में भी है। इसका मतलब जितना एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा उतना वो अपने ऊपर माइनस का चार्ज ले लेगा। अच्छा, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6। इट हैव 2 सेल KNL, आउटर मोस्ट सेल L। 6 को 8 करने के लिए दो तरीका, या तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो डुप्लेट रूल फॉलो कर ले, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले, ऑक्टेट रूल, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा तो ऑक्टेट बना देगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया बेटा? रिसीव कर लिया। जैसे ही रिसीव किया इट कन्वर्टेड इनटू आयंस। विच आयन? नेगेटिव आयन। कैसे समझा? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है। इट मींस अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके O2 माइनस बना दिया। इसका मतलब सेम डेफिनेशन एज फॉलो इन द एनायन, द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज
is directly proportional to the receiving electron by the atom, by the element. कि किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट से जितना इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ है उसी से वो उतना नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि आयंस क्या होता है। अब पूरी लाइफ आप लोग इस आयंस और एटम के बीच का डिफरेंस कभी नहीं बोलोगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। व्हाट अबाउट रेडिकल्स? अच्छा, आयंस के बाद में तो बेटा आप लोग को समझ में आ गया कि आयंस क्या होता है। आई होप आप लोग को आयंस के बीच का, आयंस और एटम के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। अब यहां पे एक अदर लाइन आगे लिखी हुई है, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड विथ चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। मतलब अभी तो हम एटम की बात कर रहे थे, अब हम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड की बात करेंगे। और आई होप आप लोग को कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होगा। द कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एंड मोर देन टू एलिमेंट बाय डेफिनेट रेशियो मास इज कॉल्ड कंपाउंड। जैसे CO2, जैसे H2O, जैसे HCl, सबके सब कंपाउंड है। अगर किसी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में चार्ज लग जाए वही रेडिकल्स होता है। जैसे बेटा देखो लिखा हुआ है NH4+। क्या ये एलिमेंट है? नहीं, एलिमेंट सिंगल होता है, इट्स कॉल्ड रेडिकल। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है, बस यही डिफरेंस है। आयंस और रेडिकल में यही डिफरेंस है। आयंस हैव ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एटम। रेडिकल्स हैव टू और मोर देन टू एलिमेंट, टू और मोर देन टू एटम्स, इसीलिए ये रेडिकल्स। तो रेडिकल्स और आयंस के बीच का डिफरेंस यही है, आयंस हैव ओनली वन एलिमेंट, रेडिकल्स हैव मोर देन टू एलिमेंट्स। आई होप द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड रेडिकल आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद बेटा हम लोग को समझना है कि आयंस और रेडिकल्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ आयन एंड रेडिकल। टाइप्स ऑफ आयंस एंड रेडिकल। अच्छा, ये कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, तो आपने देखा भी होगा अभी। देयर इज अ टू टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव को कैटायन कहते हैं, यही समझना है, पॉजिटिव कैटायन, नेगेटिव एनायन। आई होप समझ में आ गया। इट मींस आयंस हैव टू टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कैटायन, नेगेटिव एनायन। रेडिकल भी दो टाइप का होता है, इट हैव ओनली टू टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव। बट यहां पे मैंने दो अलग वर्ड लिखे हुए बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। हर बार कुछ ना कुछ नई पॉलिसी, कुछ ना कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो रेडिकल भी दो टाइप के होते हैं, हमको पता है कि रेडिकल दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट इट ऑल्सो मेंशन इन द अदर वर्ड, दैट इज एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। मतलब एसिडिक रेडिकल वो आयंस होते हैं जिसका चार्ज नेगेटिव होता है, बेसिक रेडिकल वो आयंस होते हैं जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है। बस जैसे मैंने लिखा बेटा NH4Cl, आपने कहा सर अभी NH4 आपने प्लस बताया था, Cl नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये बेसिक हो गया, ये एसिडिक हो गया। बस दिस इज अ बेसिक रेडिकल, दिस इज अ एसिड रेडिकल। यही डिफरेंस होता है बेसिक और एसिडिक रेडिकल के बीच में। आई होप टाइप्स ऑफ आयंस आपको समझ में आ गया। अच्छा, अगर टाइप्स ऑफ आयन समझ में आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के आयंस आपको याद करने हैं, कितने टाइप के आयंस आपको याद करने हैं। ये लिस्ट मैंने बना के दी हुई है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपके टेलीग्राम ग्रुप पे इसको भेज दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। इसमें कुछ लिखा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन आयन, देखिए हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, पोटेशियम आयन, क्यूप्रस आयन। क्यूप्रस आयन is also known as copper 1 ion, then ammonium ion, then magnesium ion, then barium ion, then calcium ion, then zinc ion। और उनके चार्ज भी लिखे हुए हैं, देन उनके सिंबल भी लिखे हुए हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसको आसानी से वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। अच्छा, कुछ और भी है, जैसे फेरस, क्यूप्रिक, लेड, सोडियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम, फेरिक, क्लोराइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट,
एसीटेट, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, नाइट्रेट, ऑक्साइड एंड फॉस्फेट एंड नाइट्राइड। इतने अगर आपको याद हो गए तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, क्लास 10th स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से होने लगेंगे। इसको याद करना जरूरी है। विदाउट एनी लर्निंग ऑफ आयंस एंड विद चार्ज देयर इज नो कंडीशन फॉर राइटिंग द एनी केमिकल फॉर्मूला। आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है किसी भी फॉर्मूले को लिखने के लिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्मूले को नहीं लिख पाएंगे। तो आपके दिमाग में ये बार बार आ रहा होगा कि सर हमको कैसे लिखना पड़ेगा, हाउ वी कैन राइट केमिकल फॉर्मूला, हम केमिकल फॉर्मूले को लिखेंगे कैसे, कोई ना कोई तो तरीका होगा, कोई ना कोई तो मेथड होगा। बिल्कुल मेथड है, आप अपने एनसीईआरटी को खोलिए तो सही, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्रॉस मेथड फॉर केमिकल फॉर्मूला। क्रॉस मेथड से हम अपने केमिकल फॉर्मूले को लिखते हैं। इसका मतलब हम केमिकल फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, बाय क्रॉस मेथड, बाय क्रॉस मेथड। हम क्रॉस मेथड से अपने केमिकल फॉर्मूले को लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा, एक क्रॉस मेथड होता क्या है, अगर आपने क्लास 9 की एनसीईआरटी देखी होगी तो क्रॉस मेथड में लिखा हुआ है Na हैविंग Cl वैलेंसी, Cl हैविंग Na वैलेंसी, दोनों का क्रॉस हो जाता है, इसी को क्रॉस मेथड कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ रूल्स लगते हैं बेटा, ये ऐसे ही नहीं अप्लाई हो जाता है, इट हैविंग सम रूल्स, इसमें कुछ रूल्स लगते हैं और वो रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम कैसे किसी भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं बेटा, इस रूल्स को समझ लीजिए, कभी भी आपका केमिकल फॉर्मूला गलत नहीं होगा। योर फर्स्ट रूल, फर्स्टली राइट प्लस एंड माइनस साइन। आपको पहले प्लस और माइनस साइन लिखना है, साइन प्लस बनाना और माइनस लिखना है। देन राइट द सिंबल ऑफ आयंस और रेडिकल, फिर उनके सिंबल को लिखना है। देन देयर चार्ज और वैलेंसी, उनका जो चार्ज आपने +1 +2 +3 -1 -2 देखा था, उनके सिर्फ नंबर ऑफ चार्ज को लिखना, माइनस और प्लस तो आप पहले लिख चुके हो, इसका मतलब सिर्फ आपको नंबर ऑफ चार्ज को लिखना है। अच्छा, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, फोर्थ पॉइंट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और मैंने कई कॉपियां चेक करी है बोर्ड में, उसमें बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि वो कैसे उसको लिखें, क्योंकि रेडिकल्स के लिखने में हमेशा बच्चों ने गलती की है। इसीलिए मैंने एक अलग से पॉइंट बना लिया है कि ऑलवेज टेक रेडिकल्स इन द ब्रैकेट, आपको हमेशा रेडिकल्स को ब्रैकेट में लेकर के लिखना है। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे। एंड लास्ट, सिंप्लीफाई देयर वैलेंसी, हम उसके वैलेंसी को सिंप्लीफाई कर देंगे और फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज अ केमिकल फॉर्मूला। अब हम इसमें कुछ केमिकल फॉर्मूले को बेटा देखते हैं, हम कैसे लिखेंगे किसी भी फॉर्मूले को, बस मुश्किल से 4-5 एग्जांपल देखते हैं, फिर आपका जब सेशन कंप्लीट होगा तो हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे जो आपके बोर्ड में पीवाईक्यू टाइप के क्वेश्चन, न्यू एनसीईआरटी सिलेबस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम उसमें देखेंगे। अच्छा, जो हम कुछ 5 एग्जांपल को देखते हैं बेटा, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ एंड नंबर 5। योर फर्स्ट एग्जांपल, सोडियम, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। सेकेंड एग्जांपल, आयरन, आयरन 2, आयरन 2 क्लोराइड, क्लोराइड। नंबर थर्ड, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट। इन्हीं एग्जांपल को हम चेक कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हम कैसे किसी भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। योर लेफ्ट साइड, जो आपके लेफ्ट साइड वाले पार्ट है सारे, योर लेफ्ट साइड इधर वाले पार्ट जनरली आर पॉजिटिव, ये जनरली पॉजिटिव होते हैं। मतलब पहले हमने अपने केमिकल फॉर्मूले की एक टेंशन खत्म कर दी कि हमारा पॉजिटिव पार्ट कौन है। अच्छा, अगर कभी नहीं समझ पाए तो जनरली एक बात याद रखिएगा, मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, जो मेटल्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो जो बच गए उनको याद करने की नीड ही नहीं है, तो ये जनरली क्या हो जाएंगे बेटा, निगेटिव हो जाएंगे। ये हमने अपने रफ में इसको जल्दी से ड्रॉ कर लिया। देन अब हम इनको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो बताइए, सबसे पहला रूल मैंने अभी क्या बताया बेटा, पहला रूल, फर्स्टली राइट प्लस एंड माइनस साइन। आपको पहले प्लस और माइनस लिखना है, इसका मतलब
प्लस एंड माइनस, आपने प्लस एंड माइनस लिख दिया। देन राइट द सिंबल सोडियम Na, सल्फेट SO4, सिंबल भी लिख दिया। देन देयर वैलेंसी, सोडियम का चार्ज +1, प्लस हमने पहले लिख दिया है, इसका मतलब वी कैन राइट ओनली 1। सल्फेट है -2, माइनस हमने पहले लिख दिया है, इट मींस वी कैन राइट ओनली 2। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, तो बताइए वी गेट Na2। अच्छा, सल्फेट इज द रेडिकल, अभी मैंने बताया रेडिकल को हमेशा ब्रैकेट में लेना है, तो हमने ब्रैकेट बनाया, लिखा SO4 और फिर लिखा 1। 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता है, इसका मतलब 1 को ना भी लिखेंगे तो हमारा केमिकल फॉर्मूला बैलेंस रहेगा। इसका मतलब अगर हम इस 1 को हटा देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, Na2SO4, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन 2 क्लोराइड। अच्छा, आयरन 2 क्लोराइड मींस द चार्ज ऑफ आयरन इज आल्सो मेंशन इन द क्वेश्चन। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसी में आयरन की वैलेंसी लिखी हुई है, देखिए ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमको ये पता चल गया, इफ एनी कंपाउंड हैविंग द रोमन नंबर इन मेटेलिक साइड दैट इज द वैलेंसी ऑफ मेटल, वो वैलेंसी ही मेटल की बता रहा है। आयरन की वैलेंसी कितनी बता रहा है? 2 बता रहा है। अगर कहीं 3 लिखा होगा तो 3 बताएगा, कहीं 4 लिखा होगा तो 4 बताएगा। अगेन प्लस माइनस हमने पहले लगा रखा है, अब हमको डायरेक्ट सिंबल और उसका वैलेंसी लिखना है। आयरन Fe, क्लोराइड Cl, क्लोराइड Cl, वैलेंसी 2, वैलेंसी 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाइड। अच्छा, बोथ आर आयन, इसलिए ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है। आंसर इज FeCl2, दिस इज योर आंसर। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। क्यूप्रिक, अगर आपको याद करोगे क्यूप्रिक का सर ने बताया था Cu2+, तो इसका मतलब Cu लिखेंगे, ऑक्साइड का O लिखेंगे, वैलेंसी 2 लिखेंगे, वैलेंसी 2 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, आंसर आएगा Cu2O2। द लास्ट स्टेप सिंप्लीफाई करना है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आंसर इज CuO। सोडियम कार्बोनेट NaCO3, 1 2, क्योंकि प्लस माइनस पहले लगा चुके हैं। देन Na2, फिर से रेडिकल्स, ब्रैकेट लगाएंगे, CO3 1, 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आंसर इज Na2CO3। आई होप Na2CO3 आपको समझ में आ गया, Na2CO3। अच्छा, योर लास्ट क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है। एल्यूमिनियम सिंबल इज Al, सल्फेट सिंबल इज SO4, एल्यूमिनियम चार्ज 3, क्योंकि हमने प्लस माइनस पहले लगा दिया, सल्फेट 2। देन व्हाट इज द लास्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई, then we receive Al2, sulfate is the radical, it means in bracket SO4 3। सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, सिंप्लीफाई में क्या होता है, एक ही नंबर से दोनों डिवाइड होना चाहिए। क्या 2 और 3 कभी भी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? नो, बिकॉज 2 इज अ इवन नंबर, 3 इज ऑड नंबर, कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, Al2SO4 होल थ्राइस। दिस इज द मेथड टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यही पूरी कंफ्यूजन आप लोग की आई होप इस क्लास में दूर हुई होगी, और यही मेथड है जिसको आप लोग को अप्लाई करना है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना जल्दी इनके क्वेश्चन को लिख सकोगे। तो आई होप ये क्लास आप लोग के लिए बेनिफिट होगी। जाते जाते एक छोटी सी आप लोग के लिए पोइट्री बोलना चाहता हूं, जो आज की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे स्टूडेंट लाइफ के लिए। कि कामयाबी के लिए तुम्हें खुद से लड़ना होगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों, अगर तुमको कामयाबी चाहिए तो तुमको खुद ही से लड़ना है। यू फाइंड एरर इन योरसेल्फ, नॉट सी अदर what they are doing, what they are saying. No, doesn't matter. Believe in yourself. If you believe in yourself, it means you can achieve anything. तो कामयाबी के लिए तुम्हें खुद से लड़ना होगा।
दिन को रात, रात को दिन करना होगा, मतलब दिन रात मेहनत करना है तुम्हें। मिलेगी कामयाबी तुम्हें भी एक दिन, मिलेगी कामयाबी तुम्हें भी एक दिन, बस दिन रात तुमको उसके लिए लड़ना होगा, उसके लिए लड़ना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आई होप आप लोग को ये क्लास समझ में आएगी। आखिरी में जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल टॉपर्स अड्डा 93। थैंक यू सो मच।